Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the subject Digital Signals and Design for semester 3 Electronics and Communication branch. This subject is also important for computer science and information technology student. In the last lectures, we have started the unit 1 of the subject. In this unit, we have already discussed about the number system, the conversion between the number system. We have also discussed about the Boolean algebra, the basics of the logic gates, and we have already studied about the postulates of the Boolean algebra, that what are the basic laws and the theorems of the Boolean algebra. So in this lecture we will continue with the Boolean algebra. So if you have not seen my last 4 videos, please see those videos, because those videos are very important, and especially the last one. If you will not see the last video, you won't be able to understand this video as well. Okay, so please go in my digital system design playlist of my channel, and you can see all the videos or video lectures related to this subject. So today we will cover the Boolean algebra part 2. So today we will study about the K-maps, or it is also called as Karnaugh maps. So first of all I would like to tell you, as I always do, that आज हम जो lecture में पढ़ रहे हैं वो actually में हम क्यों पढ़ रहे हैं, what is the importance of the lecture today, which the topic today which we are going to study. So Karnaugh map जो होते हैं, Karnaugh maps are graphical representation of Boolean functions. ठीक है, K maps are the graphical representations, but why it is used, why it is important? So actually in the last lecture I have already told that the Boolean postulates or Boolean laws or the Boolean theorems, that the duality theorem or the De Morgan's theorem which we have studied in the last lecture, they are useful because by using that we can minimize the Boolean functions. Or as I have already told that minimizing a Boolean function is very important, because as an electronic engineer it is very important for us to generate or to prepare or to develop a cost effective circuit, and for the cost effective circuit we need the minimized equations or minimized functions. So for minimizing the functions we use, in the last lecture we used the Boolean laws, Boolean postulates and the Boolean theorems. Okay, so what happened to learn those theorem and to memorize this theorem is not easy. हर इंसान को वो theorems जो है वो easily याद नहीं होती, and especially at the time of solving the questions it is not सर्टेन दैट हमको वो जो थ्योरम्स है वो समय पे याद आ जाए. और इवन कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी हुई होगी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो उसमें हमें याद नहीं आता. बच्चों ने मुझसे कंप्लेंट भी की थी इस बारे में कि जो है मुझे याद नहीं आता एन वक्त पे कि मुझे वहाँ पे कौन सा वो करना है. तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लगेंगी और आपको वो हो जाएगा. बट इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन भी है जिसको हम बोलते हैं के मैप. सो के मैप हम पढ़ेंगे इसीलिए जिससे हम जो Boolean functions हैं उसको easily minimize कर सकें. ओके, सो K maps are graphical representations of Boolean functions. One map cell corresponds to a row in the truth table, and also one map cell corresponds to a minterm or the maxterm in the Boolean expressions. Multiple cell areas of the map correspond to standard terms. ठीक है, तो अब एक्चुअली बात क्या होती है, मैं पहले आपको के मैप के बारे में बात बता दूं कि के मैप जो हम यूज़ करते हैं वो जनरली जो हम यूज़ कर सकते हैं और जो यूज़ करना फीजिबल होगा वो तब फीजिबल होगा जब हमारी जो बूलियन फंक्शन है वो 2 से लेकर 5 वेरिएबल्स के बीच में हो. मतलब अगर जो बूलियन फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल्स यूज्ड हो या 3 वेरिएबल्स यूज्ड हो या 4 वेरिएबल्स यूज्ड हो या 5 वेरिएबल्स यूज्ड हो. अगर हमारे 5 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होंगे तो उसमें फिर हमें सॉल्व करना जो है वो काफ़ी टफ हो जाएगा. इसलिए हम सिर्फ 2 से लेकर 5 वेरिएबल के फंक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए के मैप्स का यूज़ करेंगे. और इसीलिए आज इस लेक्चर में हम जो है वो 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप जो है वो सिर्फ पढ़ेंगे. ओके, so first we will start with the 2 variable map. So in the 2 variable map, obviously as the name suggests, हम 2 variable maps को यूज़ करेंगे जब हमारे पास boolean equation जो होगी जो 2 वेरिएबल की होगी. So for presently if I say that I have 2 variable x1 and x2, ठीक है, तो x1 और x2 2 वेरिएबल्स के हिसाब से हमारा जो k map होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. Okay, so here as you can see here the rows are showing the x1 variable and the columns are showing the x2 variable, and this 0 and 1 shows that here x2 is the complement and here x2 is simpler
and here also x1 is the complement 1 and here x1 is simple. ओके सो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज़ टू वेरिएबल के मैप, कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो x1 और x2 लिया हुआ है, ठीक है। और हमारे जो वेरिएबल्स में यहाँ पे जो रो है, हमारी रो जो है वो हमारा x1 को शो कर रहा है और जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे x2 को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 0 और 1 है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि 0 इज़ द कॉम्प्लीमेंट 1 दैट इज़ x2 या x1 बार एंड 1 इज़ द नॉर्मल x1 दैट इज़ द पॉजिटिव x1। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारा टू वेरिएबल के मैप जो है वो किस तरीके से दिखेगा। हम इसको या तो इस तरीके से शो कर सकते हैं या हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, बट जनरली वी यूज़ दिस वन। ओके, सो दिस m0, m1, m2 एंड m3 दिस शोज़ द मिन टर्म्स, ठीक है। और जो आपको हो सकता है जब क्वेश्चन आए तो कभी कभी तो हमें क्वेश्चन आता है f इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस डैश डैश डैश। अदरवाइज़ कई बार हमको क्वेश्चन ये भी आता है कि टू मिनिमाइज द फंक्शन, समटाइम्स द क्वेश्चन इज़ लाइक टू मिनिमाइज द फंक्शन एफ एक्स वाई वेयर m0, m1, m2 एंड m3 आर गिवन। इट मीन्स दैट हमको m0, m1, m2 को जो है वो 1 लेना है एंड अदर्स जो भी होंगे हमें उनको 0 के फॉर्म में लेना है। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि हमको ये जो है m0, m1, m2 एंड m3 जो है ये भी लर्न करना ज़रूरी है। सो टू मैप वेरिएबल, जो टू वेरिएबल मैप है वो इजी है, इसमें लर्न करने में ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये के मैप हमको कैसे यूज़ होगा फंक्शन को मिनिमाइज़ करने में, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। So ordering the variable is important for x1 and x2. x1 is the row and x2 is the column, as I have already told you. Cell 0 represents the x1 bar and the x2 bar, and the cell 1 represents the x1 and x2. Okay. So अब बात आती है हमारी टू वेरिएबल मैप की। तो कभी भी जब हम के मैप की बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एनी टू एडजेसेंट सेल्स इन द मैप डिफर बाय ओनली वन वेरिएबल। मतलब जब भी हम दो एडजेसेंट सेल्स की बात करेंगे मैप में तो उन दोनों सेल्स में जो है, अगर हमने अभी तो फ़िलहाल हमारा जैसे हमने सिर्फ दो वेरिएबल की बात की थी तो ईदर ऑफ द वन विल चेंज, है ना। लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा अभी 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल की भी बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ओनली वन वेरिएबल विल चेंज विद बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ओके, एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो हमारा नहीं चेंज होगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं भी आपको बताती हूँ आगे चल के, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। सो एनी टू एडजेसेंट सेल्स इन द मैप डिफर बाय ओनली वन वेरिएबल विच अपीयर्स कॉम्प्लीमेंटेड इन वन सेल एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड इन द अदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो m0 is x1 dash x2 dash is adjacent to m1, है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे m0 और m1 थे, है ना, m0 एंड m1। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा x2 चेंज हो रहा है, हमारा x1 जो है वो सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम m0 और m2 की बात करें तो इन दोनों में हमारा x1 जो है वो चेंज होगा, x2 जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि के मैप में जो भी एडजेसेंट जो हमारे सेल्स होंगे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज होगा, दो वेरिएबल चेंज नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम टू वेरिएबल्स में से एक एग्जाम्पल शो करते हैं कि हम किस तरीके से फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन, दिस इज़ द फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे जो है वो के मैप ड्रॉ किया है एंड के मैप से अगर हम देख सकते हैं हमारा पहला टर्म है x1 डैश x2 डैश। तो x1 डैश यानी दिस वन एंड x2 डैश मीन्स सॉरी अगेन x1 डैश मीन्स दिस वन एंड x2 डैश दिस मीन्स दिस वन। मैंने आपको बताया था कि जीरोज़ जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट शो करेंगे, तो x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट हमारे ये है। तो ये दोनों का हमारी जो x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट जो सेल हमारा शो कर रहा है वो है ये। तो यहाँ पे हमने 1 नोट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अब हम सेकंड पे आते हैं, हमारा है x1 डैश x2 डैश x2। तो अब हमारा x1 डैश तो सेम है, x2 हमारा यहाँ है तो हमने यहाँ पे भी 1 नोट कर लिया। अब हमारा थर्ड टर्म क्या है, x1 x2 डैश। तो x1 हमारा है ये और x2 डैश है हमारा ये, तो हमारा जो इनका कॉमन है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, सो हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे के मैप में हमने जहाँ पे भी इस फंक्शन में वैल्यूज़ दी हुई है वहाँ हमने 1 नोट कर लिया और जहाँ नहीं नोट दी हुई है वहाँ हमने 0 नोट कर लिया, या अदरवाइज़ हम कुछ ना भी नोट करें तो चलेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको के मैप में करनी है पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो किसी भी के मैप में 2 की पेयरिंग होगी, 4 की पेयरिंग्स होगी, 8 की पेयरिंग होगी और 16 की पेयरिंग होगी,
ठीक है। और जो हमारा प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमको 16 वंस एक साथ मिल रहे हैं जिसकी हम पेयरिंग कर सकें। तो ऑब्वियसली ये तो हमारा 4 सेल्ड मैप ही है, तो इसमें 16 तो मिलने से रहे। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, अगर 16 नहीं मिल रहे हैं तो क्या 8 मिल रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी इज़ 8 वंस, तो 8 भी यहाँ मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देन वी विल गो फॉर 4 की यहाँ पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे 4 अवेलेबल नहीं है। 4 तब होता जब हमारा यहाँ पे भी 1 होता, ओके, बट 4 यहाँ पे है नहीं अवेलेबल। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट 2 में, ओके। तो अब 2 की बात करें तो हमको यहाँ पे 2 पेयरिंग मिलती है, ठीक है, एक ये और एक ये। एक बार याद रखिएगा कि इसमें डायगोनल पेयरिंग नहीं होती है, एडजेसेंट पेयरिंग ही होती है। क्यों? बिकॉज अगर हम डायगोनल पेयरिंग करेंगे तो हमारे 2 वेरिएबल्स चेंज होंगे, ठीक है, और हमें सिंगल वेरिएबल चेंज करने वाली पेयरिंग करनी है। अभी हम 2 सेल्स के या 2 वेरिएबल के मैप के लिए देख रहे हैं, आगे जब हम 3 वेरिएबल के लिए देखेंगे तो आपको और भी ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है, तो हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? हम पहली पेयरिंग जो हमारी ये है इसको हम नाम देते हैं 1, और जो हमारी दूसरी पेयरिंग है इसको हम नाम देते हैं 2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पेयरिंग हम ये चेक करेंगे कि कौन सा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे, वी विल लीव दैट वन जो चेंज हो रहा है, और हम सिर्फ उसको लेकर चलेंगे जो चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम जैसा कि देख रहे हैं, द 0 हियर इज़ द कांस्टेंट वन, और यहाँ मतलब हमारा x1 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जबकि x2 जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो x1 जो है हमारा यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, x1 कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हमारी जो पहली पेयरिंग है उसके हिसाब से हमारा आ गया x1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस। अब हमारी दूसरी पेयरिंग है, दूसरी पेयरिंग में हमारा x1 जो है वो चेंज हो रहा है पर x2 चेंज नहीं हो रहा, और x2 हमारा यहाँ पे क्या है, x2 का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ये आ गया हमारा x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, है ना। तो इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इजीली बिना पोस्टुलेट्स के, बिना किसी बूलियन लॉ के, बिना किसी बूलियन थ्योरम को लगाए सिंपली हमने के मैप से जो है वो सॉल्व कर दिया, और हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो गया, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मिनिमाइज द फंक्शन यूजिंग के मैप इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो है ये प्रोसेस दी हुई है कि हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटर वंस इन द के मैप फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म इन द फंक्शन। जो भी फंक्शन में टर्म्स दी हुई हैं हर प्रोडक्ट टर्म के लिए हमने वंस ऐड किए। देन हमें ग्रुप करना है एडजेसेंट के मैप के लिए, और हमें ग्रुपिंग जो करनी है वो ग्रुपिंग हम या तो 2 सेल की कर सकते हैं, या 4 सेल की कर सकते हैं, 8 सेल की कर सकते हैं, या 16 सेल की कर सकते हैं। और हम ये याद रखेंगे कि हम एडजेसेंट सेल की कर सकते हैं, हम डायगोनल सेल्स की नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी 16 सेल को होगी, देन 8 सेल, देन 4 सेल, देन 2 सेल, एंड 16, 8, 4 and then 2, okay. So group adjacent K-map cells containing ones to obtain a product with fewer variables. Group size must be power of 2, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, then handle boundary wrap for K-maps of 3 or more variables, realize the answer, तो जो हमने करा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल के मैप की। तो अब 3 वेरिएबल के मैप आपको जो दिख रहा है, जैसे हमने यहाँ पे जो लिए हैं 3 वेरिएबल, वो है हमारे x, y, z, जिसमें हमारा जो रो है वो हमें x वेरिएबल के बारे में बताएगा, और जो हमारा y, z है वो हमको कॉलम में दिखेगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हमने दोनों 0 है, इसका मतलब दिस इज़ y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ y कॉम्प्लीमेंट z, दिस इज़ y z, एंड देन इज़ y z कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये आपको ये समझ में आ ही गए होंगे, ये तो अभी आपने पहले 2 वेरिएबल में देखा ही है, तो वो एक्सप्लेंड है। अब आप यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड देख रहे होंगे M3 एंड M7, और आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा होगा कि M0, M1, M2, M3 होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसा है क्यों नहीं, M0, M1, M3, M2 क्यों है ना। तो इसके लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे जो हमारा M0, M1 है उसके बाद M2 आना चाहिए था, पर यहाँ पे M3 है, तो इसके लिए हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये हमारा M3 है, वो हमारे जो 2 एडजेसेंट सेल की बात हो रही थी, हमने अभी जो मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले ही भी बताया कि जब हम एडजेसेंट सेल की बात करेंगे तो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए, पर हम अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हमारा यहाँ जो है वो दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमारा M2 इधर एंड M3 जो है हमारा इधर आएगा, ठीक है। सो अगर आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको जस्ट लर्न कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट विल बी M0, M1, M3, M2, देन M4, M5, M7 एंड M6, ठीक है। एंड दिस इज़ एक्चुअली ऑल्सो कि हमारा ये जो M2 है और ये हमारा M0 है, ये भी एडजेसेंट है, ठीक है। तो अगर ये एडजेसेंट हैं हमारे, तो हमारा इसमें भी आप देख रहे हैं
कि सिंगल सेल ही चेंज हो रहा है, हमारे दोनों सेल जो है वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। सो वेरिएबल ऑर्डरिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। हमारा के मैप फॉर 3 वेरिएबल कैसे दिखेगा ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे इसमें कि आपको यहाँ पे हमारे मिन टर्म्स दिख रहे हैं, वो तो चलिए ठीक है। अब हम इसकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि अभी हमने ग्रुपिंग किया, तो अभी तक तो हमारे पास जो था 2 वेरिएबल के मैप था, तो 2 वेरिएबल के मैप पे तो ग्रुपिंग या तो 2 की होगी या तो 4 की होगी, वो तो करना इजी था। लेकिन यहाँ पे हमको ग्रुपिंग 8 की भी मिल सकती है, 2 की भी मिल सकती है, 4 की भी मिल सकती है। उस केस में ग्रुपिंग जो होगी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो पहले अगर हम 2 की ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है, ग्रुपिंग जो है वो ऐसे भी हो सकती है। एज आई हैव टोल्ड कि ये और ये जो है हमारा एडजेसेंट है, तो हमारी ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है और ये भी ग्रुपिंग हो सकती है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 की ग्रुपिंग एक हमारा पूरा ऐसा भी हो सकता है और हमारा ऐसा एक स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर भी बन सकता है और रेक्टेंगल भी बन सकता है। और 8 की ग्रुपिंग तो ऑब्वियस है कि जब पूरे 1s होंगे तो हमारा 8 की ग्रुपिंग बन जाएगा, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ 2 और ग्रुप ऑफ 4 हम कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं याद दिला रही हूँ, डायगनली ग्रुप्स नहीं बनते, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं फिर से इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल इज़ फंक्शन ए बी सी वेयर ए डैश सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी डैश दिया हुआ है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारा ए शो करेगा और ये हमारा बी सी शो करेगा। तो ए डैश सी है ना, तो ए डैश सी के अकॉर्डिंग हमारा जो है हमने यहाँ पे जो है वो वंस जो है ऐड कर लिए। जैसा कि मैंने बताया था, ये 0 ये 1, ये 0 0 0 1, तो ये हमारा ए डैश टी के हिसाब से यहाँ पे 1 आया। ए बी सी मतलब जब हमारे तीनों पॉजिटिव होंगे तो हमारा यहाँ 1 आया। देन बी सी डैश के अकॉर्डिंग हमने 1 किया। इस तरीके से हमने जो है वो पूरा सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग जो है वो हमारी ऐसे हो सकती है, ये रहा एक पेयरिंग, ये रही 2 पेयरिंग, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अगर हम पेयरिंग करते हैं 4 और जिसमें इसने एक सिंगल पेयरिंग भी लिखी हुई है जो ये पूरा दिया हुआ है, और अब हम इसकी जो पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग हमने ये करी 4 की, पहला हमको 4 की पेयरिंग करनी है और ये हमारे यहाँ पे 2 की पेयरिंग होगी। तो अब हमारी जो यहाँ पे अगर हम 2 की पेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है हमारा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो यहाँ और ये है हमारा 0, ये है हमारा 1। तो यहाँ पे हमारा क्या चेंज नहीं हो रहा है, एक हमारा ये है यहाँ पे ए डैश जो चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सी जो है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए इन दोनों की पेयरिंग के हिसाब से हमारा आ गया ए डैश सी, ठीक है। और जो हमने 4 की पेयरिंग करी है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो यहाँ पे C चेंज हो रहा है, यस C इज़ चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0। क्या A चेंज हो रहा है, यस A इज़ चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। व्हाट इज़ नॉट चेंजिंग इज़ द B पार्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ A डैश C प्लस B। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार और समझाती हूँ दैट इन सॉल्विंग वाइल सॉल्विंग दिस, पहले तो हमने जो हमें टर्म्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 1s ऐड कर लिए। देन व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने यहाँ पे हमारा ये 0 है 1 है 0 0 0 1 1 1 1 0, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे जो इसकी पेयरिंग कर ली। तो पहला जो है हमारा 1 1, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो चेंज नहीं हो रहा है वो है ए डैश और सी। हमारा यहाँ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सी जो है वो 1 का 1 है और ए डैश तो 0 ही है, मतलब हमारा ये जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया ए डैश सी। एंड देन जो हमने 4 की पेयरिंग की है उस पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें हमारा ए भी चेंज हो रहा है, सी भी चेंज हो रहा है, बट बी इज़ नॉट चेंजिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी। ओके, तो इस तरीके से हम जो हैं वो 3 वेरिएबल के मैप को जो है सॉल्व करेंगे। इसके यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये ऐसा दे दें कि आपको m0 m1 m2 m3 की वैल्यूज़ में जो जहाँ पे ये दिया हुआ है उसको हम 1 1 लिखना है और उसके अलावा जो है हमको उसको 0 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था m0 m1 m3 एंड m2, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे 1 लिख लिया और जो नहीं दिया है उसको हम या तो 0 या तो ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड देन अगेन वी विल डू द पेयरिंग एंड एज़ पर द पेयरिंग हम जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो देन कम्स द 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल के मैप के हिसाब से अब हम जाते हैं
तो यहाँ पे भी जैसा कि हमारा 3 वेरिएबल के मैप में मैंने हाईलाइट किया था, यहाँ पे भी हाईलाइट कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो है हमारा m0, m1, m2 इधर, देन m3 विल कम हियर। सो इसको भी आप जो है वो याद कर सकते हैं। अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो लीव इट, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन जस्ट लर्न इट बिकॉज लर्निंग दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका जो है वो हमारा सेम होगा। हमें जो है रेक्टेंगल बनेगा या तो 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स का या फिर 4 स्क्वायर्स का भी हमारा जो है वो रेक्टेंगल बन सकता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पे हमको दिया हुआ है ABCD आर द 4 वेरिएबल्स इन द फंक्शन, और हमको यहाँ पे जो है इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं जहाँ पे हमको 1 ऐड करना है। तो वी कैन ऐड द वंस हियर, एंड अब हम यहाँ पे इसमें ग्रुपिंग करेंगे। तो व्हाट वील सी हियर वी हैव डायरेक्टली दिख रहा है हमको कि हम 8 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक है हमारा जो हम 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक ग्रुपिंग हम यहाँ से इसकी कर सकते हैं, एंड 1 ग्रुप वी कैन मेक थ्रू हियर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, और इन ग्रुपिंग को करते हुए हम जो है इसका एक आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा जो पहला ग्रुप है 8 का, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे होता है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो यहाँ पे हमारा क्या चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे होगा हमारा AB एंड CD। ओके, तो C हमारा जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो C जो है हमारा आ गया, C वो भी क्या है, C डैश है, तो C डैश हमारा सिंगल आ गया। बाकी सारे वेरिएबल चेंज हो रहे थे तो हमने उनको लीव कर दिया। ठीक है, सिमिलरली जो है मैंने आपको जैसे बाकी बताया है उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग करके उनका जो है सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, अगर आपको इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात आती है हमारी पे डोंट केयर कंडीशंस की। तो स्टूडेंट्स एक हमारा डोंट केयर कंडीशंस भी होता है इसमें, जो आपको क्वेश्चंस में आता है डायरेक्टली। अब डोंट केयर कंडीशन की क्या मतलब होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हम कहीं पे सिग्नल्स देते हैं, जैसे अगर हमारा हैंडीक्राफ्ट वगैरह में जो सिग्नल्स जाते हैं वो हमारे हाथ के थ्रू जाते हैं। हम हाथ से बताते हैं कि हम जो है वो सिग्नल दे रहे हैं वो क्या देना चाह रहे हैं, है ना। तो अब हमारी हाथ की पोजीशन वहाँ पे मैटर करती है, पैर की पोजीशन मैटर नहीं करती। मतलब अगर हमारे हम पैर कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ की पोजीशन हमने उल्टी सीधी रख ली तो उनको सिग्नल जो है वो गलत चला जाएगा और हमारा जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारे के मैप में भी कुछ डोंट केयर कंडीशंस होते हैं। वो डोंट केयर कंडीशंस कुछ ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 2 और 3 जो है वो डोंट केयर सेल्स है। मतलब आप उन सेल को आप चाहो तो 0 भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप उसको 1 भी लिख सकते हो। तो हम उसमें 1 तब यूज़ करेंगे जब हमें ऐसा लग रहा हो कि हम उसमें 1 लिखने से हमारी पेयरिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मतलब हो सकता है कि हमें अब 2 सेल के पेयर की जगह हमें 4 सेल का पेयर मिल जाए, या हो सकता है 8 सेल का पेयर मिल जाए। तो हमको पता है कि जितने ज़्यादा सेल्स के हम पेयरिंग करते हैं उतना कम हमारा, उतना छोटा हमारा टर्म होता है। तो हो सकता है यहाँ पे हमारा 2 सेल का पेयर या उससे अच्छा 4 सेल या 8 सेल का पेयर या 16 सेल का भी हो सकता है पेयर मिल जाए। तो वहाँ पे हमारा जो है वो फंक्शन वो ज़्यादा अच्छे से मिनिमाइज़ हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बताएंगे मिनिमाइजिंग यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है, जो डोंट केयर कंडीशंस होते हैं उसको हम क्रॉस से शो करते हैं, या फिर कुछ लोग उसको 5 से भी शो करते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस से शो किया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये जो क्रॉस लगे हुए हैं, दीज आर द डोंट केयर कंडीशंस। इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको आया होगा जिसमें क्वेश्चन में आपको ये दिया है टर्म्स, और उसके अलावा जो ये जो चारों टर्म्स है उसके आगे डोंट केयर लिखा होगा। तो आप चाहें तो इस डोंट केयर कंडीशंस को एज अ 1 भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो एज 0 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम देखेंगे कि अगर हमारी ये जो 2 डोंट केयर कंडीशन है इसको हम 1 ले लेते हैं तो हमको ये जो 2 का पेयर बन रहा है उसकी जगह हमको यहाँ पे 4 का पेयर मिलेगा, या फिर हम इन चारों का ही खुद का एक पेयर ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी हमारा जो है वो एक पेयर बन सकता है। तो ऑब्वियसली अगर हमने इसको 1 में लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो और भी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1 लेकर चलेंगे, और अदरवाइज इफ़ यू टेक इट 0 ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो डोंट केयर कंडीशन आपको समझ में आया। हियर इज़ 1 मोर एग्जाम्पल ऑफ डोंट केयर। सो ये तो खैर इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा ही जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है वहाँ पे डोंट केयर दे दिया है। ऐसा जनरली नहीं आता है, 2-3 आपको टर्म्स और ऐड होते हैं डोंट केयर कंडीशंस में, जिससे आपका जो फंक्शन है वो और भी अच्छे से आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। एंड हमारा जो ये प्रेजेंट लेक्चर है इसमें हमने बूलियन अलजेब्रा में के मैप को पढ़ा था, और के मैप से हम किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो भी हमने देखा। सो अब